it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we set sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone
sound of a symphony that plays out loud. There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Assalamu alaikum everyone. Sayyid Aslam Ali, Senior ASM here for this today's training of S2S और टाइटल है आज की ट्रेनिंग का पर्सनल ब्रांडिंग। आप मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा चैट के ऊपर, आप कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आप डायरेक्टली मेरे नाम को अगर सिलेक्ट करके चैट करेंगे तो मुझे आ जाएगी, या को होस्ट और को होस्ट में हमारा नाम आ रहा होगा। सो गुड, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आज की इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये S2S के जो हमारे ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स हैं, ये उसकी एक कंटिन्यूएशन है। और पिछले 2 महीने से आपके साथ हम ये लोग ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फ्लाइट से, और उसको हम आगे लेके प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और सारे जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, कमीशंस हैं, इंसेंटिव्स कैसे बनते हैं, सक्सेस प्लान क्या होता है, उसके साथ लेके चल रहे हैं। इस महीने इन ट्रेनिंग्स का एक फाइनल सेशंस हैं जो आपके साथ हम करने जा रहे हैं। एक आज का सेशन और उसके बाद एक लास्ट सेशन होगा जो हम अगले वीक में इंशाल्लाह कर रहे होंगे। तो आज का सेशन भी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अब आप उस लेवल पे ये सेशन आपको गाइड करेगा, या उस लेवल की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आपको मिल रही होंगी कि जब आपने बेसिक चीज़ें सारी अपनी कवर कर ली हुई हैं, आप एक सर्टन लेवल तक ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, आपको पता है कि बेसिक्स बिजनेस की क्या हैं, किस तरीके से आपने इनिशियल फेजेस को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, कैसे आपने अपने शुरू के लेवल्स अचीव करने हैं। तो उसके बाद एक सर्टेन लेवल के बाद आपको फील होता है या आपको ज़रूरत होती है कि आप अपना एक इमेज, अपना एक पर्सनल ब्रांड डेवलप कर सकें अपने नेटवर्क को फर्दर ग्रो करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जब आप 0% पे होते हैं तब आपके नीचे बहुत छोटा नेटवर्क होता है, वहां से बनाना शुरू करते हैं अपने नेटवर्क को, फिर आप 3 पे, 6 पे, 9 पे, इस तरीके से आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर और फिर उससे बड़े लेवल्स पे आके काम करना शुरू होते हैं, तो फिर आपको नेटवर्क को फर्दर ग्रो अप करने के लिए अपने आप को एक एक इमेज के तौर पर, एक ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश करना होता है, ताकि आपके जो अपना एग्जिस्टिंग नेटवर्क है आप उसको भी उस अपने इमेज के थ्रू, उस अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू उनको गाइड कर सकें, उनको आप अपने साथ एंगेज रख सकें, उनके लिए आप मोटिवेशन पैदा कर सकें, और उसके साथ साथ नए नेटवर्क, नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, नए ब्रांड पार्टनर्स की रिक्रूटमेंट के लिए, नई टीम्स बनाने के लिए भी आपका पर्सनल ब्रांड आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। सो हम आज के इस सेशन में मेनली देखेंगे कि पर्सनल ब्रांड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये 2 सेक्शंस होंगे इनफैक्ट इसके। सो सबसे पहले वाला जो मेरे सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांड क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से लोग पर्सनल ब्रांड को यूज़ करते हैं। और उसके बाद वकास इस ट्रेनिंग के लेटर हाफ में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रैक्टिकली आपने ओरीफ्लेम के सिस्टम के अंदर पर्सनल ब्रांड अपना कैसे बनाना है, कौन से चैनल्स हैं, किन के थ्रू आपने कैसे पेजेस और चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं, और उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए, अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए। सो छोटा सा रिकैप आज का, जो आपको पता है कि हमारी जो पर्सनल ब्रांडिंग है या जो हमारे सोशल नेटवर्क्स हैं, तो सोशल नेटवर्क बेसिकली हम लोग सोशल सेलिंग के प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि हम चल रहे हैं आज के दिन में, आज के इस एरा में, तो हमें अपना सोशल नेटवर्क उसी प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए अपने ब्रांड को बिल्ड करना होता है। तो उसका एक छोटा सा रिकैप है कि जब आप सोशल सेलिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। ये आपने पिछली ट्रेनिंग के अंदर बड़ी डिटेल में देखा
कि 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस होता है जिसको आपको रिपीटेडली फॉलो करना पड़ता है, जिसमें शेयर, इनवाइट और एंगेज के मेन स्टेप्स होते हैं। और शेयर से मुराद ये होता है कि आपने ऐसा कंटेंट, ऐसा अपना एक्सपीरियंस, ऐसी अपनी जो है यूजेज, अपने कमेंट्स, अपनी जो है रिव्यूज शेयर करने होते हैं लोगों के साथ, कि जिससे लोग इंटरेस्ट ले सकें आपके लाइफस्टाइल में, आपके उन प्रोडक्ट्स में जो आप यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आप उनको, उन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए इनवाइट करते हैं, और बाय करने के साथ साथ फिर आप उनको फर्दर एंगेज करते हैं अपने कस्टमर्स को, कि वो ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं, और अगर कोई कस्टमर ही रहना चाहता है तो वो भी रिपीटेड कस्टमर आपके लिए ताकि बन सके। तो आप कंटिन्यूअसली उनको अपने कंटेंट के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू, अपनी शेयरिंग के थ्रू एंगेज रखते हैं। तो सोशल सेलिंग के प्रोसेस में जब हम नेटवर्क बिल्ड कर रहे होते हैं या लोगों को, हम अपनी टीम को बढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी जिस तरह से आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि हम फिजिकली लोगों से मिल रहे होते हैं डिफरेंट गैदरिंग्स के ऊपर, डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, अपने आपके स्कूल के एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे हम लोगों से मिल रहे होते हैं। मिलने के साथ साथ आप उनसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपनी स्टोरीज, अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आप उनके साथ एक रेपो बिल्ड कर सकें, एक आप कनेक्शन बिल्ड कर सकें। कि फॉर एग्जांपल, आपने कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, परफ्यूम पहना हुआ है आपने, तो आप लोगों से जब बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लोग आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और इन द मीन टाइम आपके दरमियान एक रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट बेसिक लेवल का एक क्रिएट होना शुरू हो जाता है, आप एक दूसरे को जानना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली अपना नेटवर्क, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में उनको हम मेनली डिवाइड करते हैं। एक वार्म कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हमारे दूसरे होते हैं कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। तो वार्म कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव, आपके अक्वेंटेसेस, कोवर्कर्स, आपके कलीग्स आ रहे होते हैं, जिनके साथ आप रेगुलरली वैसे भी कांटेक्ट में होते हैं। और आप जैसे ही अगर आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट बनाना शुरू करते हैं या आपके फ़ोन में आप देखते हैं, तो वो सारे लोगों के नाम, कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी आपके फ़ोन के अंदर, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के अंदर आ रहे होते हैं। उनके साथ साथ जब आप अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उन वार्म कॉन्टैक्ट के साथ साथ अपनी उनके जो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अप्रोच करना पड़ता है। वो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं, कि जो हो सकता है कि डायरेक्टली तो आप बहुत ज़्यादा उनसे पहले इंटरेक्शन ना करते हो, लेकिन वो आपके वार्म कॉन्टैक्ट्स के आगे फर्दर कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। या ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि अगर आप ऑफिस में, किसी बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपके अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ तो बड़ा वार्म कॉन्टैक्ट आपका पहले से हो, लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वहाँ पे आप ना पहले इस तरह से इंटरेक्ट करते हो, लेकिन जब आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ानी होती है, आपने अपने नेटवर्क को ग्रो करना होता है, तो फिर आप उन कोल्ड कॉन्टैक्ट्स को भी, जो आपके सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे आ रहे होते हैं, आपकी वर्क प्लेसेस में, स्पोर्ट्स में, इवेंट्स और रेस्टोरेंट्स में, या आपके ऑफिसेज में, तो आप उनको भी अप्रोच कर रहे होते हैं, ताकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो ग्रो होती रहे। और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ जब आपने चीज़ें शेयर करनी होती हैं, तो आपके पास 2 मेजर एरियाज़ होते हैं उनके शेयरिंग के लिए। एक एरिया होता है कि जिसमें आप फेस टू फेस उनसे चीज़ें शेयर करते हैं। जैसा एग्ज़ाम्पल्स आपके पास इस वक़्त हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर, या किसी जिम के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, वर्क पे आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। और दूसरा मीडियम जो आपके पास अवेलेबल होता है वो है सोशल मीडिया, कि आप हो सकता है कि फ़िज़िकली उन लोगों से ना मिलें, ना कभी भी ना मिले हों, लेकिन आप थ्रू सोशल मीडिया, जिसमें आपको फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, यूट्यूब है, उनके थ्रू आप अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों से शेयर कर रहे होते हैं जो आपके एक्सटेंडेड नेटवर्क में आ रहे होते हैं, जिनसे हो सकता है कि आप रेगुलरली बात नहीं करते, या आप मिले नहीं हैं, या वो आपसे दूर कहीं रहते हैं, लेकिन जब आप शेयर करते हैं उनके साथ चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम वो चीज़ आपकी पहुंचना शुरू हो जाती है। तो सोशल मीडिया का, या जो डिजिटल मीडिया का इनफैक्ट यूज़ है, वो आपकी जो एफर्ट है या आपकी रीच है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप फिजिकल इवेंट में जाके, अगर आप 10, 20, 50 लोगों से बात कर सकते हैं अगर, तो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया आपको अनेबल कर देता है कि आप एक ही टाइम पे हज़ारों लोगों से भी बात कर सकते हैं। जिस तरह इस मीटिंग के अंदर भी अब अगर हम देखें,
तो हम लोग जब ब्रांच के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग के लिए कॉल करते हैं, तो ब्रांच पे हमारे पास लोग आते हैं 20, 30, 50, इस तरीके से काउंट आ रहा होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन यही ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 300, 400, 500 लोग भी आ रहे होते हैं, और समटाइम्स हम अपना जो 1000 का काउंट है वो भी टच करते हैं। सो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के थ्रू आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा आसानी से अपना मैसेज जो है बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं। और नेटवर्किंग आपकी इस तरीके से फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जैसा आप अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो लेफ्ट साइड से आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, वो साहब जिनके साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है वो सेकंड नंबर पे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर उनका आगे एक और कांटेक्ट है, तो एक लाइन आपको शो कर रही है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन जो पहले वाला बंदा है और आखिरी वाला बंदा है वो तब तक आपस में कनेक्शन नहीं होगा उनका जब तक वो उस टेक्निक को, उस एफर्ट को यूज नहीं करेंगे कि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपने एक्सटेंडेड नेटवर्क अपना, यानी आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स और फ्रेंड्स तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो आपको ऑरेंज या रेड लाइन नजर आ रही है इस वक्त, वो आपको बता रही है कि किस तरीके से वो लोग जिनके साथ आप डायरेक्टली नहीं भी पहुंच पाते थे, उनके थ्रू भी आप, उनके पास भी आप डिजिटल मीडिया के थ्रू बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और ऑफलाइन केसेस में भी, यस, अगर आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे और आप ऑफलाइन ही वर्किंग करते हैं तो ऑफलाइन में भी ये पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी अपने एक दोस्त के साथ जाके मिलते हैं, फिर उसकी मीटिंग में आपको उसके फर्दर दोस्तों के साथ, उसके रिश्तेदारों के साथ आप मिल सकते हैं, और इसी तरीके से आप आगे से आगे लोगों के साथ कांटेक्ट अपने बिल्ड कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है कि जब आपने ये जान लिया कि आपने कांटेक्ट लिस्ट अपनी एक्सपेंड कैसे करनी है, आपको ये पता चल गया कि जी अच्छा मैं क्या क्या करूंगी तो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में इजाफा होगा, कि पहले मेरे पास कांटेक्ट में अगर 50 लोग हैं तो उनको मैंने 100, 200, 500 करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। लेकिन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, टू क्रिएट द कनेक्शन विद द पर्सनल ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं। तो उसको हम एक सपोर्ट हम लेंगे एक ट्रू स्टोरी की, जो एक अमेरिकन ऑथर की स्टोरी है, और ये अराउंड 2007 की स्टोरी है जो केस स्टडीज में पढ़ाई जाती है, कि उस दौरान 2007 के अंदर उसने एक प्लान किया कि वो अपने बिजनेस को, जो भी उसका बिजनेस था, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे अपनी प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था वो बंदा। तो उसने एक प्लान बनाया और उसने कहा कि जी ठीक है, मैं 1 साल तक ये स्टेप लूंगा कि जी जितने इवेंट उसकी कम्युनिटी में प्लान थे, डिफरेंट जगहों पे होने थे, उसने उन इवेंट्स को अटेंड करने का खुद प्लान बनाया कि जी वहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं अपने बिजनेस के लिए वहाँ पे सेटअप लगाऊंगा, जितने लोग आएंगे वहाँ पे मैं उनको अपना कांटेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। और इवेंचुअली उसने देखा कि उसके पास 1 साल के अंदर उसने काफ़ी सारे जो कांटेक्ट लिस्ट थी अपनी एक्सपेंड कर ली, और बहुत सारे लोगों को उसने अपने कॉन्टेक्ट्स में शामिल कर लिया। लेकिन 1 साल के बाद जो बिजनेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया, वो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आ सका कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, कि अगर 50 लोगों को वो पहले अप्रोच करता था अपने कस्टमर्स को, और 50 लोगों में से 5 लोग अगर या 10 लोग उसकी चीज़ें खरीद रहे थे, तो उसका ख्याल था कि अब जब 500 लोग होंगे तो ऑब्वियसली उसमें से 50 या 100 लोग मेरी चीज़ खरीदेंगे। लेकिन उसकी सेल के ऊपर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन मार्क क्या था, फिर उसने सोचा कि जी अच्छा जी क्या वजह क्या है। तो पता चला कि जी उसको एक डिस्कनेक्ट फील हुआ, और उसे लगा कि जी मैं जो सारी चीज़, मैं तो अपने एंड पे तो पूरी एफर्ट कर रहा हूँ नेटवर्क बिल्ड करने की, और नेटवर्क मैंने बिल्ड भी कर लिया अपना, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने एक्सपेंड भी कर दी, लेकिन लोगों के पास क्या रीज़न है कि वो मुझे ट्रस्ट करें। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ लोग उसको क्यों फॉलो करें, मैं जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज बता रहा हूँ लोग उसको, क्या वजह है कि लोग उसको ट्रस्ट करें। लोगों के पास तो और भी ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट खरीदने की और जगहों से अपनी सर्विसेज लेने की, तो वो मेरे पास ही क्यों आए। सो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने सोचा, और उसने जब रिसर्च की उसके ऊपर, तो उसको पता चला कि बेसिकली मैं जो चीज़ लैक कर रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास अपनी, मैंने आइडेंटिफिकेशन लोगों के जहन में अपना इमेज जो है वो उस तरीके से मैं क्रिएट नहीं कर पाया। मेरा फोकस ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कॉन्टेक्ट्स में ले आऊँ, लेकिन वो लोग कॉन्टेक्ट में आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी ऑफर से, मेरी प्रोडक्ट से उस तरीके से वो कन्विंस नहीं हुए, इम्प्रेस नहीं हुए।
उसका रीजन ये था कि जी लोग उसको पूरे का पूरा जब आपसे मिल रहे होते हैं, लोग जब आपको ऑब्जर्व करते हैं, लोग जब आपको देखते हैं कि वो खुद आप क्या चीज सेल कर रहे हैं या क्या आइडिया उनको आप पिच कर रहे हैं बिजनेस का, तो वो लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप खुद उस आइडिया के ऊपर कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, कितने ज्यादा आप उस पर काम करते हैं, कितना ज्यादा आपका फोकस है उसके ऊपर। और ना सिर्फ कि ये फोकस जुबानी है, बल्कि आपकी लाइफ में भी वो चीज नजर आती है। आपके एक्शंस जो हैं, जो वैल्यूज हैं आपकी, वो भी उसको डिपिक्ट करती हैं कि जो आप बिजनेस आइडिया, जो आप इमेज लोगों के जहन में बनाना चाह रहे हैं। सो इस चीज ने उसको लीड किया उस तरफ कि असल में जो चीज मिस कर रहा था, उसने अपना पैसा भी लगाया, उसने अपना टाइम भी लगाया, उसने अपनी एफर्ट भी लगाई, लेकिन रिजल्ट ना आने की वजह ये थी कि वो अब एक चीज मिस कर रहा था जिसको हम आज की ट्रेनिंग में डिस्कस कर रहे हैं, और उसको हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। कि पर्सनल ब्रांडिंग की उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इतनी उसने उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ था कि वो जो नेटवर्क उसका बन गया है उससे फायदा उठा सके इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को, उसको प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा सके उस अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। सो इस पॉइंट के ऊपर अब हम मूव करेंगे टुवर्ड पर्सनल ब्रांडिंग विद द डेफिनेशन कि पर्सनल ब्रांडिंग अब होती क्या है। वो लोग जो जिनके लिए ऑब्वियसली ये वर्ड है, अभी नया वर्ड है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं है, तो इस वक्त आपके सामने पर्सनल ब्रांडिंग की एक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त अवेलेबल है। और बाय द वे इस ट्रेनिंग का जो आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेने की या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको ये ट्रेनिंग कल कल तक यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड मिल जाएगी। सो आपको फिलहाल जो फोकस करना है, अपने थॉट प्रोसेस को आपने लाइव रखना है, आपने सुनना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और आपने इस बात को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने उसके ऊपर फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन की कोशिश करनी है। जितनी चीज़ आपको समझ आ रही है, जो आप जितनी कर पा रहे हैं, वो आपने करना भी शुरू करना है। वरना अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद आप अगली ट्रेनिंग लेंगे, फिर अगली ट्रेनिंग लेंगे, और आप इम्प्लीमेंट नहीं उसको करेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट हाउ समवन फील्स इन द मोमेंट व्हेन दे इंटरेक्ट विद यू और योर बिजनेस। तो पर्सनल ब्रांडिंग का लफ्ज निकला ब्रांड से, ब्रांडिंग से, जो आपको हम क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रांड बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेट नहीं करते, बल्कि किसी प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, किसी कंपनी से रिलेट कर रहे होते हैं वो ब्रांड्स। तो ब्रांड वो चीज़ होती है कि आप उसके बारे में जो भी फील करते हैं जब आपके सामने वो ब्रांड आता है। यानी कोई अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें, तो आपके सामने जब एक पर्सन, एक बंदा आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में या कोलीग्स में कहीं आपके सामने आता है, तो आपके जहन में उसका एक इमेज बनता है। हर बंदे का एक इमेज होता है आपके जहन में कि फॉर एग्जांपल जी ये बंदी जो है, ये अ, इसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये बंदी जो है इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है जी, ये बंदी का मेकअप स्किल्स बहुत अच्छी है, ये स्किन केयर में बहुत अच्छी है। ये आपको बिजनेस के अलावा पर्सनल अगर आपको कोई मशवरा चाहिए तो वो बहुत अच्छी है। अगर आप किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये जो मेरी कलीग है या ये मेरी फ्रेंड है, ये उस लिहाज से बहुत अच्छी है कि मुझे बड़ा अच्छा फेयर मशवरा दे सकती है, मेरी प्रॉब्लम को सुन सकती है। तो ये जो फीलिंग होती है किसी के बारे में आपकी, ये उसकी असल में पर्सनल ब्रांडिंग है कि उसका इमेज है। ब्रांडिंग का मतलब ये आप समझ लें कि आपके जहन में किसी दूसरे का जो इमेज है वो उसकी ब्रांडिंग है। इसी तरीके से जो आपका इमेज, आपकी जो पिक्चर उस आपकी टीम के जहन में है, उन लोगों के जहन में है जो आपके नेटवर्क से एसोसिएटेड हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, जो आपके सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, उनके जहन में आपका जो इमेज है, जो आपकी पिक्चर है, जो आपकी खसूसियात उनके जहन में आपने बिल्ड की हैं, उसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। सो वो खसूसियात कैसे बिल्ड करते हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम इसी ट्रेनिंग में आगे सीख भी रहे होंगे। सो पर्सनल ब्रांडिंग को फिलहाल आपने ये समझना है कि फॉर एग्जांपल एक और इसकी डेफिनेशन या कोट इस वक्त जेफ बेजोस की आपके सामने है, जो कि फाउंडर है अमेजोन का, इस वक्त बहुत बड़ा एक ग्लोबल ब्रांड है। वो कहता है कि पर्सनल ब्रांड वो चीज़ है कि जो व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू लीव द रूम। मतलब ये कि अगर आप किसी जगह पे हैं और आप उस जगह से उठ के बाहर जाते हैं,
तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके बारे में जो बात करते हैं, तो वो बात असल में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। यानी आपकी गैर मौजूदगी में जो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि जी ये कितना कितना सच बोलता है, कितना ये ट्रस्टवर्दी है, कितना ये ऑनेस्ट है, कितना ये गुड लुकिंग है, कितना ये अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखता है, कितना ये अपने ड्रेस का ख्याल रखता है, कितना ये लोगों के लिए हेल्पिंग है, वो इस तरह के एट्रीब्यूट्स, या कितनी अच्छी कुक है, कितनी अच्छी ये टेलर है, ये कपड़े बड़े अच्छे डिजाइन करती है अपने लिए। तो ये चीजें आपकी परसेप्शन जो है दूसरों के जहन में जो बनती है उसको हम पर्सनल ब्रांडिंग कह रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो फिर आपको पर्सनल ब्रांड या ब्रांड एक उसका ट्रिगर हो जाता है। अगर इस केस में हम देखें, इस वक्त हमारे पास एक क्रिकेट बॉल और बैट नजर आ रहा है, तो अगर कोई हमें बताता है, दिखाता है ये तस्वीर और हमसे पूछता है कि ये देख के आपके जहन में कौन सी पर्सनैलिटी आ रही है, तो हर एक को अपनी अपनी पसंद के मुताबिक और अपनी अपनी कांटेक्ट के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्रिकेटिंग पर्सनैलिटीज डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगी जहन के अंदर। के फॉर एग्जांपल अगर आप करंट सिनेरियो में देखें तो हमारा जो वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम की पर्सनैलिटी कुछ लोगों के जहन में आएगी, किस वजह से आएगी कि जी ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कि जी ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद जो है ये बहुत ज़्यादा प्राउड अपने आप को शो नहीं करता, बहुत इजी गोइंग है, सबके साथ अच्छे तरीके से बात करता है, और इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी इसमें गुरूर नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ें आपके जहन में फौरी उसके ब्रांड से रिलेटेड आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी सिंगर को देखते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंगिंग की एक पिक्चर लगी हुई है, तो आपके फौरन जहन में अपनी अपनी पसंद और अपने अपने एक्सपोजर के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो सिंगर आपको पसंद है वो आपको याद आना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रांड ये करता है कि आपको एक सर्टन सिंबल्स के थ्रू फिर उन लोगों के सारे एट्रीब्यूट्स आपके जहन में रिकॉल करने में आपको मदद देता है। सो ये इसी तरीके से दो बहुत ही बड़े पर्सनल ब्रांड की एग्जांपल्स हैं अमेरिका से, और इनमें सब आप बहुत सारे लोग जो हैं इनको ऑलरेडी जानते होंगे। एक पिक्चर बिल गेट्स की है, और जो कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड है और डायरेक्टर है, और दूसरी जो पिक्चर है वो है ओपरा विनफ्री, जो अमेरिकन एक होस्ट है, एक टीवी होस्ट है, जो शुरू एक टाइम पे रेडियो से हुई और उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। फिर सोशल वर्क के अंदर इन लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पूरे अमेरिका के अंदर, तो ये उसके लिए जाने जाते हैं कि ये अपनी दौलत में से इन्होंने बहुत सारा पैसा अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए और उन लोगों के लिए दिया। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली हर बंदा अपने अंदर एक ब्रांड होता है, उसका एक इमेज ऑलरेडी आपके जहन में होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को वो इमेज देना चाहें या ना देना चाहें, वो आपका इमेज बन रहा होता है। तो उसको आपने पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज करना होता है कि आपने वो इमेज अपनी मर्जी का क्रिएट करना है अगले के जहन में, फिर आप उसको अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना हो सकता है कि किसी के जहन में आपका इमेज ये हो कि जी ये तो मैं इसको जो भी प्रॉब्लम अपनी बताती हूँ ये आगे से अपना प्रॉब्लम सुनाना शुरू कर देती है और मेरी कोई हेल्प नहीं करती, तो वो फिर आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएगी भी नहीं दोबारा। तो आपने अपना इमेज इस तरीके से बनाना है कि आप लोगों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी टीम के लिए एक सिंबल बन सकें, कि जो भी आपको अपनी टीम में से देखे उसको ये चीज़ जहन में आए कि जी बहुत फॉर एग्जांपल हेल्पफुल है, कि जी ये कुक बहुत अच्छी है, इसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये मदर बहुत अच्छी है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये लुक आफ्टर कर रही है। तो इस तरह के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को आपने स्ट्रांगली, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने रीइटरेट करना होता है ताकि लोग उसको आपको फॉलो करना शुरू हो जाए, लोग आपके उन एट्रीब्यूट्स को याद रखें, और उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे जो भी चीज़ आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप उनको उनके लिए उसके रिव्यूज़ दे रहे हैं, उनको लगे कि ये 100% जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, और आपकी हर बात को वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। फिर कोई वजह नहीं होगी कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं चाहे वो हज़ारों में हैं, जब आप एक कंटेंट के ऊपर, एक वीडियो के ऊपर, जिस तरह आप देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका क्या काम है कि जी उनके, क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, उनको फॉलो कर रहे होते हैं, उन जैसा काम करना चाह रहे होते हैं, तो वो कोई भी चीज़ जब कहते हैं कि जी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की है या मैं फलां जगह विजिट की है, फलां रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया है, तो वो जैसे ही वो कंटेंट पोस्ट करते हैं
तो उस जगह की, उस प्रोडक्ट की, उस रेस्टोरेंट की लाइकिंग बढ़ जाती है, लोग ज्यादा कस्टमर्स वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। सो आपने भी ब्रांड को अपने इसी तरीके से बिल्ड करना होता है। और ये जो सर्कल अब आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से ऑनवर्ड आपको वकास साहब लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि अच्छा जी, ये आपने एक बेसिक्स देखी ब्रांड की, ब्रांड होता क्या है। लेकिन अब आपने सादा लफ्जों के अंदर, आप खुद एक ओरिफ्लेम के अंदर जब काम कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को ब्रांड के तौर पे किस तरीके से बिल्ड करना है। सो ओवर टू वकास साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इस इवेंट को और इस ट्रेनिंग को और इस टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं। अब असलम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आप किस तरह से अपना एक ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड का एक बड़ा ज़बरदस्त एक इमेज आप लोगों के लिए क्रिएट किया और बताया कि जी ब्रांड को क्रिएट करने के लिए किस तरह से लोगों ने मेहनत की, या वो एक लंबे अरसे तक एक खास चीज को करते रहे और कंसिस्टेंट होने के बाद उनका नाम या ब्रांड बना। सबसे पहले अगर ब्रांड आप लोगों ने क्रिएट करना है या आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि बी योरसेल्फ। जो आप हैं वही लोगों के सामने आए। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कोई भी एक चीज जब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, या अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते, हम लोग लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। माइट भी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा बोलते होंगे, दे मस्ट हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस बड़ा अच्छा समझते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बहुत कुछ करते हैं। ब्रांड इज समथिंग डिफरेंट। आपको आना या आपके पास किसी स्किल का होना, दैट इज डिफरेंट। आपका ब्रांड जो है वो, जैसे असम साहब ने एग्जांपल ली थी जेफ बेजोस की, कि जब आप कमरे से जाते हैं और बाकी रह जाने वाले लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, वो आपका ब्रांड है। आपकी गैर मौजूदगी में आप किस चीज से एसोसिएट होते हैं, किस चीज से आपके बारे में जाना जाता है, वो ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आपको अपना टैलेंट देखना है। जब तक आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उसके ऊपर वर्क करके या उसको कंसिस्टेंट बना के आप अपना ब्रांड नहीं बना सकेंगे। अगर ब्रांड बनाने की बात की जाए, तो सबसे पहले अगर आपने लोगों के सामने अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए। एक मिनट, आ गया। जैसे कि इसमें बताया गया कि सबसे पहले आपने वो राइट इमेज क्रिएट करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना आप लोगों को दिखाना है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोशल मीडिया को थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जो मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। सोशल मीडिया पे हम में से बहुत से लोगों को एक चैलेंज आता है कि जी हम लोग अपने पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सकते हैं, हम अपना नाम शेयर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू XYZ रीजंस। और वो हमारी सोशल अबाइडिंग्स हैं, हम लोग उसको मना भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी टॉप 15 में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नकाब करते हैं। टॉप 15 में जो मर्द हजरात हैं वो अपनी बेगवात के साथ हैं, या उनकी अगर दाढ़ी भी है, तो हमने ये हरगिज नहीं कहा कि आप अपनी दाढ़ी कटवा के आ जाएं। हमने ये नहीं कहा कि अगर आप नकाब करते हैं तो नकाब उतार दें। पर्पज ये है कि आपको जब तक लोगों पे ट्रस्ट नहीं आएगा, आपका मतलब आपकी पर्सनैलिटी का लोगों पे ट्रस्ट नहीं होगा, या लोग आपकी बात को या आपकी शक्ल को देख के ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अपना ब्रांड नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको राइट इमेज क्रिएट करना होता है, और राइट इमेज क्रिएट करने का मतलब या मकसद आपके ब्रांड को बनाना है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग काम ये करते हैं कि जी जितने भी लोग हैं हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो अपनी पिक्चर तो शायद नहीं लगाते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप पे गूगल से डाउनलोड करके या कैटलॉग की जो पिक्चर है स्क्रीनशॉट लेके वो अपलोड कर देते हैं। और स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद आप ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जो कि आपके अपने ब्रांड को बिल्ड होने में मदद नहीं दे रहा। और इसलिए हम अपने ब्रांड को इंटैक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया पे जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट कर रहा है।
सो आपको वो सब चीजें करनी है या वो चीजें करनी है जिससे आपका बेनिफिट हो। अब आपका बेनिफिट किस चीज से हो रहा है? आपकी अपनी राइट पिक्चर लगाने से, आपकी अपनी स्टोरी लोगों को बताने के से, आपके अंदर क्या आइडेंटिफाई, आपकी क्या क्वालिटीज हैं उसके बारे में बात करने से। जो आप हैं वही आप लोगों को ट्रस्ट पे लेके आएंगे। जो आपका इमेज होगा, जो आपकी चीजें होंगी, वही लोगों पे ट्रस्ट होगी। जैसे कि अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि किस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं या बनाना चाहिए, या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने एक दफा एक पिक्चर लगाई, या मैंने एक दफा कोई रिव्यू दिया, मैंने कोई एक दफा किसी खास प्रोडक्ट के बारे में बात की, और उसी रिव्यू को मैं बार बार अगर आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उससे मेरी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। हाँ, फॉरवर्ड करना कंसिस्टेंट जरूर है, तो आपकी बात कि जी मैं काम कर रही हूँ वो मानने को तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अगर नहीं आ रहा, तो आपको हर दफा जब भी आप कोई रिव्यू दें किसी प्रोडक्ट का, वो नया रिव्यू देना है आपने। आपने जब भी अपने बारे में कोई बात करनी है या स्टोरी बतानी है, तो हमेशा नई पिक्चर, नई सिचुएशन, नई जगह के हिसाब से आपको वो चीजें बतानी है, जैसे कि हम लोग आप लोगों को हमेशा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने राइट जगह पे राइट चीज मेंशन नहीं की होगी, तो आप कभी भी उससे एसोसिएटेड कोई भी चीज अपने जहन में रिकॉल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एक मिनट जी दीजिएगा प्लीज। मेरा माइक भी है ना, वो रेड ओ, होने लगा है, एंड पे ऑफ हो गया, तो मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये जी ठीक, जी ठीक। जी आई एम सॉरी जी। सो एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसको हम ठीक कर रहे थे। एनी हाउ, सो हम बात कर रहे थे ब्रांड की। सो ब्रांड से एसोसिएटेड कोई चीजें जब तक आप उसको अपने जहन में नहीं लेके आएंगे, वो उस वक्त तक ब्रांड नहीं क्रिएट होगा। मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, तो उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई एक चीज जिसने ब्रांड क्रिएट किया होता है, वो आप परचेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब नए नए मोबाइल फोन जीएसएम पे कन्वर्ट हुए थे, तो लोग, कोई नहीं कहता था कि जी मुझे इस कंपनी की सिम चाहिए, हमेशा लोग कहते थे जैस चाहिए। आ, अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो किसी खास एक सिस्टम को यूज करते हुए या उस ब्रांड को यूज करते हुए आप उसको कहते हैं कि जी ये कर दो, जैसे कि इजी पैसा है। सो हम लोग ये नहीं कहते कि जी आप बैलेंस ट्रांसफर या अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, हम कहते हैं जी इजी पैसा कर दो। सो इसी तरह से ब्रांड को बिल्ड करने के लिए बार बार उससे एसोसिएटेड उसका जो ट्रस्ट है, जो वो काम कर रहा है, उसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे भी एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन है किसी एक चीज की, एंड दैट इज ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम के ओ को जैसे आप देखते हैं, साथ ही आपके जहन में एक कॉस्मेटिक, इनकम, बेनिफिट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड सो मच मोर आपके जहन में आ जाता है। सो यही वो चीजें हैं जो हमें टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहने की बात पता चली है, या हमने क्रिएट किए हैं। लाइक अगर ऑरिफ्लेम की बात की जाए, तो 55 साल में हम 30 लाख लोगों तक पहुंचे, 60 से ज्यादा ममालिक तक पहुंचे। आप अपने ब्रांड को क्रिएट करने के लिए पहले अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में मौजूद लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं, फिर इसी तरह से आप अपने शहर, अपने मुल्क और हर एक बंदे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो तभी आपका ब्रांड बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंटली वही बात बता रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं। हम लोग ऑरिफ्लेम की बात करते हैं और कंसिस्टेंटली ये सारी बातें बता रहे हैं कि जी ऑरिफ्लेम आपकी लाइफ चेंज करता है, ऑरिफ्लेम आपको पैसे कमाने का मौका देता है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी ऑलवेज ट्राई टू एसोसिएट विद ऑरिफ्लेम, और आप उसी के जरिए अपने जहन में रखते हैं। सो ऑरिफ्लेम का जो ब्रांड है, दैट इज अ स्वीडिश क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाला ब्रांड। हमने ये नहीं कहा कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड कुछ ऐसी चीजें हमने की जिससे आपके जहन में चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाए या आपके जहन में रह जाए। मिसाल के तौर पे, ऑरिफ्लेम ब्रांड जो है वो ब्यूटी बाय स्वीडन के नाम से मशहूर है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है, वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर एंड पावर्ड बाय साइंस। हम लोग लोगों की लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आप जब तक अपनी उन आइडेंटिफिकेशंस, उन चीजों को नहीं पकड़ेंगे, आप ब्रांड
या ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और ट्रस्ट अगर बिल्ड नहीं कर पाए तो आपका नाम नहीं होगा, और नाम नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो लाइफ बेहतर नहीं कर सकेंगे। सो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी की बात की जाती है तो कंपनी बेसिकली उस ब्रांड को बाद में, पहले आपको देखती है। आपका जो नाम है, आपका जो ट्रस्ट है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपने लोगों को दी है, जब तक आपका पर्सनल ब्रांड वो सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो कि ऑरिफ्लेम बता रहा है कि ऑरिफ्लेम के ब्रांड के अंदर जी क्या क्या चीजें हैं, वो जब तक आप एसोसिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ऑरिफ्लेम कहता है जी कि हम लोग क्रेडिबल हैं, हम लोग लोगों को एक्सेसिबल हैं, हम लोग लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, या लोग हमारी बात पे ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारे एक्शन से या उसकी एप्लीकेशन के बाद वही रिजल्ट दे रही है जो हम बता रहे हैं। और यही वो चीज आप जब लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आप पे भी लोग ट्रस्ट कर रहे होंगे, और आपका भी ब्रांड बनेगा, और आपका और ऑरिफ्लेम का ब्रांड जहां पे मर्ज हो रहा होता है वहां पे आपकी ग्रोथ आ रही होती है। मिसाल के तौर पे जब आप ऑरिफ्लेम की बात करते हैं तो आपके पास 4 ऐसे स्टेप्स होने चाहिए या 4 ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो हमारी वैल्यूज हैं या प्रोडक्ट की वैल्यूज हैं, या प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। पहला, प्रोग्रेसिव। हम लोग हमेशा नई से नई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो नेचुरल हैं उसके अंदर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं करते, लेकिन हम हमेशा नए तरीके, नई प्रोडक्ट, नए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के उनसे प्रोडक्ट बनाने के ऊपर काम करते रहते हैं। और यही चीज आपने लोगों को बतानी है कि आप जब तक नए लोगों को नहीं ढूंढेंगे उस वक्त तक आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे अपनी नेक्स्ट लेवल के लिए। फिर इसी तरह से मैं अगर एक्सेसिबल की बात करूं तो आप जब तक लोगों पे एक्सेसिबल नहीं होंगे, लोगों के लिए आप एक्सेसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपना एक टाइम सेट किया है, आप कहते हैं कि जी मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक या वट एवर जो भी आपने टाइम सेट किया, मैं उस वक्त तक अवेलेबल हूँ। डिफरेंट लोग आपको मैसेज कर रहे हैं और आप उनको जवाब नहीं दे रहे, तो लोगों की एक्सेसिबिलिटी कम होने की वजह से आप पे ट्रस्ट नहीं होगा लोगों का। जबकि ऑरिफ्लेम कहता है कि जी हम लोग अवेलेबल हैं, या ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 8 बजे तक मौजूद है, हेल्पलाइन मौजूद है, पूरा ऑफिस अवेलेबल है। खुदा न खास्ता कोई अनहोनी चीज या अनएक्सपेक्टेड चीज ना हो जाए, लेकिन हम लोग इस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी उस टाइम तक है। उस टाइम को अगर आपने लोगों के साथ एक्सेसिबल नहीं रखा तो आपकी ट्रस्ट डेवलप नहीं होगी। फिर इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये एक्सेसिबल है हर उस लेवल के, हर उस बाइंग पावर की कैटेगरी या उस कैटेगरी में आने की जो कि हमारे पास मौजूद है। सो एक्सेसिबल होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेसिबल होना इसका मतलब कि 3 लेवल्स पे जो 3 कैटेगरीज हैं बाइंग पावर्स की, उसी के सामने रखते हुए प्रोडक्ट की एक्सेसिबल होना दैट इज आल्सो एट्रीब्यूट जो कि ऑरिफ्लेम का है। फिर हमारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फिर इसी तरह से हमारी ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट्स हैं। सो जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोग्रेसिव हैं, एक्सेसिबल हैं, नेचुरल हैं, आपकी ट्रस्ट वर्दी हैं, तो वो उसी वजह से हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को इन एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएट करें ताकि ऑरिफ्लेम का ब्रांड और आपका ब्रांड क्रिएट हो सके और लोगों को ट्रस्ट बिल्ड, जो लोगों को ट्रस्ट है वो हो सके। सो अब आपने अगर ब्रांड बिल्ड करना है तो मैं उसकी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन या छोटी चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ब्रांड बिल्ड करना होता है। ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपकी एक यूनिक वॉइस होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। मिसाल के तौर पे हमने अक्सर अपनी कम्युनिकेशन की क्लासेस में या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हुए एक चीज सुनी थी, देखी थी और एक्सपीरियंस भी की थी कि ये जरूरी नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। और किस तरह से बात जब आपकी अपनी होगी, यूनिक होगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों के जहन में रहेगी। और वही यूनिक वॉइस क्रिएट करने के लिए आपके पास 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप फोकस करते हैं तो आपकी एक यूनिक वॉइस बनती है। मिसाल के तौर पे मैं, जो मेरा ड्रीम है या मेरा जो पैशन है, उसको जब तक मैं अपने अल्फाज में या अपनी यूनिक वॉइस में नहीं शेयर करूंगा, मेरा ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। सो फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आपका जो पैशन है वो यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक है, उसको एक्सप्लेन करना भी यूनिक होना चाहिए। उसके बाद अगर आ जाती है बात जी क्या ऐसे ट्रेट्स हैं आपके जो कि आपकी पर्सनैलिटी में आप कह सकते हैं जी के डोमिनेंट हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं या कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं। फिर इसी तरह से
आपका एक्सपीरियंस आपके नॉलेज स्किल के साथ मिलके क्या एक ऐसी यूनिक चीज बना रहा है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं। फिर इसी तरह से अगर बात की जाए तो चौथी चीज कि जी कौन सी कोर वैल्यूज हैं आपकी। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑरिफ्लेम की कोर वैल्यूज की बात करें तो वो 3 कोर वैल्यूज हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जी टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन। ये हमारी कोर वैल्यूज हैं। आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं, आपके जिंदगी गुजारने के ज़ाब्ते अखलाक क्या हैं, सुनहरी असूल क्या हैं कि आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है, और अगर आपने बिजनेस करना है या आपने अपने बारे में लोगों को बताना है तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप समझते हैं कि बिल्कुल यूनिक होंगी या आपकी सुनहरी असूल है। मिसाल के तौर पे हर फैमिली में कोई ना कोई एक असूल होता है जो कि बहुत कॉमन है। मगरिब से पहले पहले बच्चों को घर लेके आना है, या मगरिब से पहले बच्चे जो हैं वो घर होने चाहिए। स्कूल आप लोग टाइम पे जाते हैं तो एक ज़ाब्ता अखलाक है कि जी टाइम जो है उसको जाया नहीं करना। आपने एक सिक्योरिटी, एक ऐसी चीज क्रिएट की है जिसको आप फुलफिल या फॉलो करते रहते हैं। इसी तरह से पांचवी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि किन लोगों को आपने इंस्पायर करना। आपने वर्क से, अपनी बातों से, अपने इखलाक से, अपनी कम्युनिकेशन से किन लोगों को आपने इंस्पायर करना है, किन को आप चाहते हैं कि आप इंस्पायर करें। फिर इसी तरह से छठा जो मेन पॉइंट आता है कि आपकी स्टोरी क्या है, व्हाट इज योर मेन स्टोरी। अब मेन स्टोरी का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपनी स्टोरी नहीं बना सकते जब तक कि आप कोई डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर या कोई मैनेजर का टाइटल नहीं अचीव करते। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। आपको ये सारी की सारी चीजें करना बहुत जरूरी हैं उस वक्त जब आप लोगों को अपने बारे में अपनी यूनिक वॉइस में ये नहीं बताएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं या आपने क्या अचीव किया या आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जब तक ये 6 एलिमेंट्स आप नहीं बताएंगे लोगों को, उस वक्त तक आपकी एक पर्सनल ब्रांड बनाने की पहली सीढ़ी जो है वो अबूर नहीं होगी। सो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपकी यूनिक वॉइस है, आपका अपना जो पैशन है वो आपका अपना होना चाहिए। तो जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे उस वक्त तक ये कंसिस्टेंट ना होने की वजह से भी नहीं क्रिएट होगा। सो जो हैं आप, बी योरसेल्फ। जैसे कि इस स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि यू डोंट नीड टू बी समथिंग यू आर नॉट। आपको वो होने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं है, आपको वो होने की जरूरत है जो आप हैं, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जी आपने हमारा सोशल सेलिंग प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना है। शेयर, इनवाइट, एंगेज हर रोज करना है, हर दूसरे बंदे के साथ करना है, हर उस बंदे के साथ करना है जो कि आपको नजर आता है। अपनी वार्म कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है अपने उन तमाम कोल्ड कॉन्टेक्स्ट को जिनको पहले कभी नहीं देखा आपने। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक एक्टिविटी है छोटी सी जो कि आई वुड सजेस्ट कि आपको जरूर करनी चाहिए। और ये इसमें लिखा ये है कि जी आपने अपनी जो स्टेटमेंट है या जो आपका अपना एक सेंटेंस है जिस जो एक्सप्लेन करे कि आपका पर्सनल ब्रांड क्या है, जिसके नीचे 4 चीजें मेंशन भी हैं कि हु यू आर, what you are passionate about doing। उसके बाद आ जाता है जी for whom, किसके लिए वो करना चाहते हैं, and to what aim, क्या हासिल करना चाहते हैं, किसके लिए, क्या, कौन है आप और क्या करना चाहते हैं। ये 4 चीजों के एक मुरक्कब से आप अपनी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स नीचे मेंशन भी हैं, आप अगर इसको देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। सो पर्सनल ब्रांड को कन्वे कैसे करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 चीजें हैं जो कि मैं आपको टिप देने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े ध्यान से गौर से सुनिएगा इन 7 चीजों को कि आपने किस तरह से अपने पर्सनल ब्रांड को कन्वे करना है। तो पर्सनल ब्रांड को कन्वे करने के लिए सबसे पहले द थिंग्स यू से, जो आप कहते हैं वो आपने कन्वे करना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी आई एम अ ब्यूटी एक्सपर्ट, एग्जांपल दे रहा हूं। सो ब्यूटी एक्सपर्ट होने के लिए ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा जब तक आप करेंगे नहीं, और करने के लिए आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट होती हैं आपकी अपनी कैटलॉग से। कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका टेस्टिमोनियल, उसका रिव्यू आप देना शुरू कर दें और ये आप कहें कि जी मैं एक ब्यूटी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट हूं, तो एक्सपर्ट उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि आप लोगों को बताएंगे नहीं कि ये क्या आपने किया। सो सेकेंड चीज अगर मैं बात करूं, जो टोन ऑफ वॉइस है आपकी, दैट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप सही राइट टोन ऑफ वॉइस के साथ वो चीज नहीं कहेंगे उस वक्त तक चैलेंज रहेगा। थर्ड जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, द कंटेंट यू शेयर, द कंटेंट, द पिक्चर्स,
स्टोरी जो आप शेयर कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके पर्सनल ब्रांड को कन्वे करेगा। उसके बाद फिर आ जाता है जनाबे वाला आपकी स्टोरीज, जो आप लोगों को बताते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है। फिर इसी तरह से आपके अटायर अपीयरेंस किस तरह से है, वो बेसिकली आती है जी। उसके बाद आ जाता है जी कि आप जो पिक्चर्स लोगों के साथ शेयर करते हैं। होता क्या है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल से डाउनलोड करते हुए पिक्चर्स को अपलोड कर देते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि जी आई एम अ ब्यूटी एक्सपर्ट, और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो बिफोर एंड आफ्टर वाली पिक्चर साथ लगा के आप उनको प्राइस बता देते हैं, जबकि इससे प्रोडक्ट नहीं बिकती। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी इस चीज की कि आपने ये यूज किया और उसका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हुआ, और उसके बाद आपने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त लगी थी। और इसी तरह से कितने पैशनेट हैं अपने स्टोरीज को और चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। सो दीज आर द 7 स्टेप्स या थिंग्स जो कि आपका ब्रांड जो है उसको कन्वे करेगा। सो वेयर डू यू कन्वे योर कम्युनिकेशन एंड पर्सनल ब्रांड? कहां पे करना है आपने? फेस टू फेस, सोशल मीडिया, हर जगह पे जहां पे आप समझते हैं कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अच्छा, अब समझने से मुराद ये हरगिज नहीं है कि आप समझते हैं कि जी मुझे मैं ये समझता हूं कि जी ये चीज इन स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को मिलनी चाहिए तो उन्हीं को हम शेयर करें। नहीं, हर उस बंदे को शेयर करें जो कि आपके इर्द गिर्द है, जो खुद कुछ करना चाहता है। आप जब उसको सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सनल ब्रांड को शेयर करने के साथ साथ लोगों को अट्रैक्ट करने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आना शुरू हो जाएंगी। फेस टू फेस करें, सोशल मीडिया पे करें, किसी भी तरह से अगर आप कर रहे हैं तो वो एग्जाम्पल्स जब तक कि आप देख नहीं लेंगे उसको, जो मैंने बात अभी बताई है वो शायद इतनी आपको कन्विंसिबल ना लगे। लेकिन अगर आप इसको जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, एक यूट्यूब चैनल है जो कि हमारे एक ब्रांड पार्टनर है फ्रॉम इंडोनेशिया, उनका यूट्यूब चैनल है। आप इस यूट्यूब चैनल को अगर देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें कहीं भी आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो कि किसी दूसरे बंदे की है। शी इज राइटिंग रिव्यूज, she is telling her stories, she is doing whatever she is doing, और वो पोर्ट्रे कर रही हैं, डिस्प्ले कर रही हैं, लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर रही हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ब्रांड। अगेन उनका इंस्टाग्राम के अंदर बड़ी सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन, और सिर्फ उनकी लाइफ, सिर्फ उनकी अपनी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आप लोग शेयर करना चाहिए आपको, वो उन्होंने शेयर की। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनका फेसबुक पेज अपनी पिक्चर है, किसी और की पिक्चर नहीं लगाई। हाँ, आप क्या उसे कहते हैं, नकाब करते हैं तो अपने नकाब के साथ आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। आपको नाम आपका, जैसे जिक्र किया कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, तो बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैंने खुद क्या बात की है, मैं क्या बात कर रहा हूँ और मेरा नाम क्या है। हम लोग बहुत सी डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक्चुअल नाम वकास है और नाम मैंने अपना फेसबुक पे या अपने किसी भी सोशल मीडिया पे बड़ा डिफरेंट सा रखा हुआ, वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। मेरा यूनिक वॉइस तो क्रिएट हो गई, लेकिन ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? और यूनिक वॉइस के साथ साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वट एवर यू आर, बी योरसेल्फ, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया। इसी तरह से हम लोग आपको वक्तन फवक्तन इसकी ट्रेनिंग्स भी देते रहते हैं कि किस तरह से आपने अपने फेसबुक पेज पे अपनी पिक्चर, किस साइज की पिक्चर, कितने पिक्सलेट की पिक्चर जो है वो आपने अपलोड करनी है, वो भी हम बताते रहते हैं। सो ये सब चीजें आपको बताने का पर्पस ये है कि इनमें किसी भी जगह पे आपको ये चीज नजर नहीं आएगी जो उन्होंने खुद नहीं की। खुद नहीं करने से मुराद ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि गूगल से डाउनलोड करके किसी और की पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर दी हैं। अब मैं एक जगह पे देख रहा था, एक हमारे ब्रांड पार्टनर, वैसे ही रैंडमली चेक किया तो उस पे हुआ ये कि जी नाम उनका है, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो कवर फोटो थी या जो प्रोफाइल पिक्चर थी उस पे कैश अवार्ड लगाया हुआ था। और कैश अवार्ड किसका लगाया हुआ था? वो किसी एक हमारे सफाई डायरेक्टर का था। नाम उसका जो है वो कुछ और है, प्रोफाइल पिक्चर पे जो नाम लिखा हुआ है या जो लोगो बना हुआ है या जो मेंशन की हुई चीजें वो कुछ और है। अब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले जो लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा हूं वही गलत दे रहा हूं। सो you need to be very very specific, you should make sure कि जो आप चीज कर रहे हैं वो आपकी अपनी हो, आपके अपने रिव्यूज हो। टिप्स, अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये 6 टिप्स हैं जिनको आपने दोबारा से ज़हन में रखना है, जो हमने पहले भी बात की थी, मैं अभी भी बात कर देता हूँ। बी योरसेल्फ,
ऑथेंटिक रहें, फिर उसके बाद जो आप हैं वही अपनी स्टोरी शेयर करें, उसके बाद जो पॉजिटिव एटीट्यूड है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आगे लेके जाएगा। फोकस रहें एक चीज के ऊपर, और एक चीज का मतलब उस कंटेंट के ऊपर जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह से कंसिस्टेंट रहना भी बहुत बहुत जरूरी है। ये है जी कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान में यूज होते हैं। हमारे सोशल मीडिया जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें व्हाट्सएप इसलिए है क्योंकि हमारी इंटरनल जितनी भी कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप पे चल रही होती है, व्हाट्सएप पे लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम ऑलरेडी जो हमारे ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे अवेलेबल है। सो यू कैन फील द बेस्ट ऑप्शंस और आपको इसके बारे में बहुत सी चीजें पता चलेंगी। सो अब हम ट्राई करेंगे, उमैर साहब की हमने YouTube चैनल से थोड़ी सी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपने अपना जो YouTube चैनल है उसको क्रिएट करना है। सो स्क्रीनशॉट्स में दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपने YouTube पे जाना है, YouTube पे जाके आपका लॉगिन तो ऑलरेडी होता है, आप अपने लॉगिन से स्टूडियो में जाएंगे और वहां पे आप एक नई जो वीडियो है उसको अपलोड कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको जहाँ पे यू लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे, वहां पे बिल्कुल साथ ही क्रिएट का बटन भी नजर आ रहा है और उसी से नीचे आपको अपलोड की तरह का एक साइन, मतलब एरो जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जो कि अपलोड का साइन है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जी पर्सनल ब्रांडिंग की अगर बात की जाए तो यूट्यूब वीडियोस आप इसी तरह से अपलोड करते जाएंगे, इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपकी शेयर होती जाएगी। सो पर्पस ये है, ये सब कुछ बताने का मकसद आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी बताना है कि किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल जो है बना सकते हैं। इसी तरह से फेसबुक की बात की जाए तो आपको एक ब्लैक कलर का एरो नजर आ रहा है एक डॉट वाले मेन्यू पे, जिसको मेन्यू बटन बेसिकली कहते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप पेज की ऑप्शन आएगी, पेज क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करके आप उसमें अपनी डिटेल्स मेंशन करें और फिर इसी तरह से आप आगे जाएं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें वो मेंशन भी है, हमने आपको प्रोफाइल से पेज बनाने का कहा, हमने प्रोफाइल पे आपको चीजें शेयर करने की बात नहीं की है, क्योंकि जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो आपकी जो बूस्टिंग है वो आपके पेज से होती है। एड मैनेजर जिसको कहा जाता है वो हमेशा पेज से किया जाता है। सजेस्टेड है कि आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करें जो अभी आपको बताई गई हैं ताकि आपका ब्रांड बन सके। और दूसरा, ऑनलाइन डिजिटल गाइडलाइंस को कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम डिजिटल गाइडलाइंस या कोड ऑफ एथिक्स या जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मिसयूज करें या उसको पढ़ें ही ना। सो डिजिटल गाइडलाइंस ब्रांड बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं बना सकते या नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक मेरे टॉपिक का ताल्लुक था, आज हमने अपना S2S के 3rd मंथ का फर्स्ट मॉड्यूल जो कि पर्सनल ब्रांडिंग था उसको कंप्लीट किया है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अख्ताम पे जैसे अपनी ऑरिफ्लेम क्लैप है वो करते हैं, तो ऑरिफ्लेम क्लैप करने के लिए आई वुड सजेस्ट के असम साहब प्लीज मेरे साथ आ जाएं और हम लोग ऑरिफ्लेम क्लैप जो है उसको करते हैं। ओके जी, ऑरिफ्लेम क्लैप के लिए जी हमने अपना उल्टा हाथ बाहर निकालना है, उल्टी टांग बाहर निकालनी है, सीधा सर से ऊपर लेके जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट करेंगे और कहेंगे ऑरिफ्लेम, मैं कहूंगा ये, मैं कहूंगा ऑरिफ्लेम, आप कहेंगे यस, मैं कहूंगा पाकिस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद, मैं कहूंगा नंबर, आप कहेंगे 1। रेडी है जी? चलें जी, 1 2 3। ऑरिफ्लेम, पाकिस्तान, नंबर। थैंक यू सो मच।